Welcome students to my basic English class, and in this video I'm going to discuss about noun. What is a noun? Everyone knows that noun is the name of a person, place or thing. It means noun is a naming word. Noun is a naming word. It is the name of anything. We may say it anything. Whatever you think. Means two things here. Noun, name of a person, place and thing. Three: person, place or thing. So whenever we understand about, there is no doubt about person and place and thing. It creates some doubt. This is a critical concept, and you have to, at least one should understand all about this. Person कभी भी डाउट नहीं होता है, हमें पर्सन्स होते हैं जिसके नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग बोल देते हैं. बट इस जगह पे पर्सन पे हमें और एक चीज़ आ जाते हैं, एनिमल्स पे आ जा सकते हैं. ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप. प्लेस नो डाउट इट इज़ क्लियर थिंग, एक जगह का नाम होता है. बट अब जब आ जाते हैं हम लोग थिंग के ऊपर, व्हाट इज थिंग? And when we say and when we define the noun word and the definition, noun is the naming word and it is the name of anything, whatever you think. Anything, name of anything. And whatever you think, जो हम सोच सकते हैं. Anything that we think means it comes to our mind. हमारे mind पे जो कुछ भी आता है वो एक anything हुआ, and that thing come under this noun. Okay, then what comes to our mind and how it comes? There are two ways how we think and how we know and how we name a word, person, place or thing, whatever it be. But how we define a thing? एक thing को हम कैसे define करते हैं? There are two types of things that we give their name. All the naming words are nouns. All the naming words are noun, it is clear. Person, animal, these are person, place, there is no doubt. But thing, the word thing is used to mean anything that we can think of. Anything that we can think of. जो हम सोच सकते हैं वो एक thing है. But here, the word thing, it includes all the two things, that is first one is all the things that is real. How it is defined? That one is related to what? This is related to what? Sense organ. Sense organs. And how many sense organs we have? We have 5 sense organs. Okay. So that all object, the first type is all object that we can see, hear, देख सकते हैं, जो कि हम सुन सकते हैं, and taste, smell and touch also. This is touch and then smell. So the 5 sense related things are: see, this is related to our eyes; hear, related to our ear; taste with our tongue and touch with our skins. इस स्किन से हम लोग टच को परसीव कर सकते हैं, एंड स्मेल नोज से. सो ये जो 5 सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है फर्स्ट ग्रुप का थिंग्स. फर्स्ट ग्रुप का जो थिंग्स है ये हमारा सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, जिसके थ्रू वी कैन परसीव, मीन्स परसीव, वी कैन परसीव दिस थिंग्स. हम इस सबको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल सब फील कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स, बाय मीन्स ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स. बट सेकंड टाइप जो हो गया, और सेकंड टाइप क्या होगा? वी कैनॉट परसीव बाय आवर सेंस ऑर्गन. दैट समथिंग दैट कैन बी थिंक ऑफ, सोच तो सकते हैं इसके बारे में, बट कैनॉट परसीव
बाय द परसीव्ड बाय द सेंसेस। जो सेंस के थ्रू हम परसीव नहीं कर सकते। तो कंप्लीटली ये जो थिंग्स है दो टाइप का, एक परसीव से रिलेटेड है, हमारा सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, और जो सबको हम लोग परसीव कर सकते हैं, फर्स्ट टाइप हुआ। एंड सेकेंड ग्रुप हो गया जो थिंग्स दैट कैनॉट बी परसीव बाय द सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन से जो हम लोग परसीव नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ये सब थिंग को तो हम जान सकते हैं, ठीक, जो भी हम लोग देख सकते हैं ये सब तो टच भी कर सकते हैं, कॉमन चीज। जैसे चौक हो गया, बोर्ड हो गया, इसको देख सकते हैं, बुक्स हो गया देख सकते हैं, ऑल द थिंग्स अराउंड अस जो देख सकते हैं, ये सब इसी ग्रुप का हुआ। सेकेंड ग्रुप क्या होता है, दैट कैनॉट बी परसीव, मीन्स यार दीज आर सम ऑफ द ह्यूमन क्वालिटीज, दीज आर सम ह्यूमन क्वालिटीज, human quality, it be human quality or it be some idea, human idea that come to our mind, and then experience and feelings, जो कि हमारे फीलिंग्स से रिलेटेड है। ये हो गया सेकेंड टाइप और दिस आर द फर्स्ट टाइप। ओके, अब इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, नाउन के बारे में आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। अब कोई भी डेफिनेशन बता देते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, सबको समझ में आ जाते हैं। पर्सन में थोड़ा सा डाउट होता है, एनिमल्स को छोड़ देते हैं, एनिमल भी उसी ग्रुप का ही होगा। सेकेंड टाइप, प्लेस में भी कोई डाउट नहीं। थर्ड, थिंग, थिंग में ही सब कुछ डाउट है, जो आगे जाके आपका क्लियर हो जाएगा। Second, common noun. Third one is collective noun. Collective noun. Fourth, material noun. And fifth one, the abstract noun. सो ये जो 4 है फर्स्ट ग्रुप का था। ओके ओके, दिस आर द 4 ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन, थिंग्स के। एंड सेकेंड ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिस इज ऑफ द सेकेंड टाइप ऑफ थिंग्स, जो हमारे परसिव नहीं कर सकते, सेंस से रिलेटेड नहीं है। ये सब हम लोग सेंस से रिलेटेड है, कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। बट जो सेकंड टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर थिंकिंग, या दिस इज रिलेटेड टू आवर थॉट, फीलिंग्स हो सकता है, ह्यूमन क्वालिटीज हो सकता है, आइडिया हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। ये जो सेकंड टाइप था एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप में आता है। और लेट डिटेल हम लोग को डिटेलिंग करते हैं, वन बाय वन इसका पूरा क्लियर डिस्कशन करते हैं। ओके, फर्स्ट टू अब स्टार्ट करते हैं। पहला, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ओके, लेट्स स्टार्ट। For example, look here the example. For example, look here the example. Osaka was a brave king. Brave king. By example, so I'm going to explain all the things or kinds of nouns one by one by means of examples. First, fill the things. So here there are two nouns, one is Osaka and second one is king. Osaka एक नाउन है और किंग भी एक नाउन है, बट इस जगह पे एक देखा जाए तो Osaka is the particular name. It refers, the word Osaka here refers to a particular king, to a particular king, and here king is a common name to all kings. ठीक है, इस जगह पे आपको एक चीज़ मार्क करना है कि ओसोका एक पर्टिकुलर किसी राजा का नाम है, बट ये जो किंग वर्ड है ये सभी राजा के लिए हो सकता है, इवन ओसोका के लिए भी। यही है दो टाइप का नाउन अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हियर यू मे राइट सीता इज ए गर्ल, देन Sita is a girl, and I say Raipur is a city,
and next one is I mean write a, for example this is any it be place, and we say Sita, Raipur, and India. We must say it another place. India is our country. So mark here, look at the examples like this example, and here also Sita is the name of a particular girl. पर्टिकुलर गर्ल के किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम है सीता, बट हियर द वर्ड गर्ल इज ऑल्सो ए नाउन, बट दिस इज नॉट ए पर्टिकुलर नेम, इट इज ए कॉमन नेम to all the girls of that category or that class. And also Raipur is a city. Raipur is a particular name of a particular city. It is the particular name of a city, not all city. सभी city का नाम रायपुर नहीं है, किसी एक particular city का नाम है रायपुर. And here the city is the common name. What is, well, this word city, it is the common name for all the cities of the world. किसी भी city के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको. And then, for example, the last example, fourth example, India is our country. There are two nouns here also, India and country. This India is the particular name of our country. हमारे ही country का नाम India है, ना कि किसी भी country का नाम India है. Where we live, our country, name of our country is India. So it is the particular name of our country. एक country का particular name है. This is not the common name for all, but this thing is common. This country is common to all the countries of the world. किसी भी country के लिए हम देश के लिए country word use कर सकते हैं. So here the definition comes. Define these words. This group of words and this group of words. These are some different words. These are particular. These are particular names. These are the particular names. ठीक है, ये सबका particular name है. And these are the common names. Common name. तो जो common name से related होता है उसको हम क्या बोलेंगे? Common noun. So ये क्या होगा? This time common noun. Common noun. And the first one is जो proper particular से related है, ये हो जाएगा proper noun. Proper noun. ये type 1 and this is the second type. First type, a proper noun. Proper noun is the word which is the particular name of a person, place or thing. किसी person, place or thing का particular name होगा, that is proper noun. And here this is the common name of a, it is the common name. So come to the point. Proper noun, this is the proper noun is the name of, ये हो सकता है या सम भी हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. पर्सन और प्लेस से रिलेटेड है, आपको थिंग नहीं करना है इस जगह पे. पर्सन एंड थिंग, पर्सन और पर्सन और हियर प्लेस, पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन और प्लेस. इस जगह पे आपको क्या करना है? पर्टिकुलर कॉमन नेम ऑफ पर्सन और दिस इज द thing, person or things, not place. This is the common difference. Here proper means, proper का meaning क्या होता है? Proper means, here proper means one's own, एक का खुद का, one's own. Proper means one's own. Okay, one's own means किसी का नाम, जैसे अशोका, it is the one's own name. एक किसी पर्टिकुलर राज्य का ओन नेम है. सीता किसी एक का नाम है, ओन नेम है. एंड रायपुर एंड इंडिया और दीज आर वंस नेम, किसी एक कैटेगरी का नाम है, उनका एक ही का ही नाम है, नॉट कैटेगरी सर, एक किसी एक का पर्टिकुलर. अशोक, सीता, रायपुर, इंडिया, एक ये व्यक्ति का नाम है, पर्सन का, ये भी पर्सन हुआ, ये प्लेस का नाम है, ये भी प्लेस का नाम है. सो दैट ओन्स वंस ओन नेम. एंड हियर it is the, and what do you mean by common? Common means share by all. Common means share by all. Share by all. सबके द्वारा शेयर है, all शेयर करते हैं. इट द कॉमन नेम, क्योंकि कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, तो सब शेयर करते हैं. सो दिस इज द थिंग दैट कॉमन मीन्स शेयर बाय ऑल.
तो क्या होगा डेफिनेशन इस जगह पे अगर आप डिफाइन करते हैं, आफ्टर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन को लेते हैं। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए और फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। व्हेयर इज द कॉमन नाउन क्या होता है इस जगह पे? कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल। क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल, ये क्या है? एक किसी का नेम नहीं है, किसी एक क्लास और ग्रुप, क्लास ही बोला जाए, कॉमन क्लास, सबका एवरी अकेले अकेले का नाम है, सबका सिंगल, सबका कॉमन है। एंड इज कॉमन मीन्स शेयर बाय ऑल। एंड श्रेणी का, किसी ग्रुप का, एक प्रकार प्रजाति जो होते हैं उन्हीं का, सबका एक पर्सन और थिंग का सबके लिए नाम। सो लुक हियर some other more examples here and clear the doubts. There are 4 sentences here, and first one is Ram is a doctor. Second, the Ramayana is a holy book, the Ganga is a river, and the Indian Express is a newspaper. Okay, mark here. There are these categories, proper noun versus common noun. अभी आप लोग को सबको डेफिनेशन पता चल गया। अभी डिफाइन करेंगे कि सब और प्रॉपर नाउन किस ग्रुप में आएगा, एंड द वर्ड्स डिफाइन करेंगे, एंड देन कॉमन नाउन का। There are now Ram, doctor, these are the nouns, naming words, Ganga, river, newspaper, and Indian Express. So these are the nouns, 8 nouns here. Every sentence पे 2 nouns है, 2 nouns है, every sentence पे there are 2 nouns. और मैं डाउट ये देखना कि प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन क्या है। फर्स्ट सेंटेंस, राम, इट इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए डॉक्टर। ए पर्सन का पर्टिकुलर नेम है उनका राम। एंड डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर हो सकते हैं, दीज आर द कॉमन थिंग्स फॉर ऑल द डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। एंड ये जो रामायण है, दिस इज ए होली बुक। सभी बुक का नाम रामायण नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर बुक का नाम है रामायण। एंड बुक इज सो दैट हियर इट इज द प्रॉपर नाउन एंड दिस इज कॉमन नाउन। CN is common noun and book is also common and it is proper noun. Ganga, this is the name of a particular name of a river, that is proper noun. A river, that is common noun. सभी रिवर का नाम नहीं है, ये सबके लिए रिवर हो सकता है, कोई भी नदी है उसको हम रिवर लिख सकते हैं, पर्टिकुलर कोई नहीं है, कॉमन नेम है, इट इज़ द कॉमन नेम, इट इज शेयर बाय ऑल द रिवर्स। एंड इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज न्यूज़पेपर, बट दिस इज द पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, सो दैट इट इज प्रॉपर नाउन। एंड हियर न्यूज़पेपर, इट इज द कॉमन नेम, इट इज़ ए कॉमन नाउन। सो आई थिंक आप लोग का जो भी डाउट्स है ये दोनों रिलेटेड, टाइप 1 प्रॉपर नाउन एंड सेकेंड वन इज कॉमन नाउन, इसका डाउट क्लियर हो गएगा। थर्ड टाइप से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन नेक्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।